اس وقت JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے عدالتی فیصلے کا مطالعہ نہیں کیا اور وہ شاید یہ نہیں جانتا کہ وزیر اعظم کو جس بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا ہے وہ اس پر تو ماہرین آئین و قانون سب حیران سرگرداں ہیں کہ اتنی بڑی عدالت عظمیٰ سے اس بنیاد پر نااہلی کی توقع شاید پاکستان میں کسی ماہر آئین و قانون کو نہ تھی۔ پاناما کیس کا مسئلہ ہے، آف شور کمپنیوں کا مسئلہ ہے، لندن فلیٹس کا مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ میں کیس داخل کیا گیا تھا اور کئی مہینوں تک جو مسلسل عدالت کا موضوع بحث رہا، ان پر تو کہا کہ نیب اس کے بارے میں مزید تحقیق کرے اور فیصلہ دے، لیکن ایک ایسی کمپنی کہ جس پر انہوں نے صرف یہ کہ چونکہ اس کی تنخواہ وصول نہیں کی اور اس کا مالک اس کا بیٹا ہے، بیٹے سے اس نے تنخواہ نہیں وصول کی، چونکہ تنخواہ وصول نہیں کی اس لیے آپ نااہل ہیں۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ بہت بڑا ملبہ سامنے آئے گا کہ اس نے اتنا بڑا پیسہ کمایا ہے اور پیسہ کمانے کی پاداش میں نااہل ہے، لیکن عجیب بات سامنے آئی کہ جو پیسہ اس نے نہیں لیا، نہیں کمایا، اس پر نااہل ہو گئے ہیں۔ بالکل ایک الٹا تصور سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے فیصلے دیے ہیں وہ ہم جیسے کم علم لوگوں کی کم علمی پر ہی اس کو حمل کریں گے۔ ہم نہیں جانتے، عام پاکستانی نہیں جانتا کہ اس کے اندر آخر کون سا ایسا فلسفہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اعلیٰ عدالتوں کے وہ فیصلے کہ جو تاریخ اس پر تنقید کرتی رہی ہے، تاریخ کے نظروں میں وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت فیصلے دیے گئے، اس پہ انصاف کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ آج کے ہمارے اس فیصلے کو بھی کل کی تاریخ اسی زمرے میں شمار کرے کہ دنیا کی کسی عدالت میں شاید پاکستان کے اس فیصلے کو بطور ایک نظیر کے پیش نہ کیا جا سکے۔ کتنی بڑی ہماری سبکی ہے اگر دنیا میں ہماری عدالت کا کوئی فیصلہ کسی فیصلے میں بطور دلیل یا نظیر کے پیش نہ کیا جا سکے، تو اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ایک وزیر اعظم کو نااہل کرنا اور ملک میں ایک سیاسی بحران پیدا کرنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے، ایک سیاسی بحران ملک کے اندر پیدا کرنے کا ہے، اور سیاسی بحران کس کا ایجنڈا ہے اس کو عالمی سطح پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے اندر سی پیک اور ترقی کا جو سفر چل رہا ہے اور یہ انڈیا کی نظروں میں بھی کھٹک رہا ہے اور چین کے ساتھ ہمارا تعلق اور سی پیک کے حوالے سے معیشت کا اور نئے مستقبل معاشی نظام کا اور ترقی کا پہلا زینہ ہم بنتے ہیں، تو پھر امریکہ کے زد میں بھی ہم لوگ آتے ہیں اور بین الاقوامی پالیٹکس کے زد میں بھی ہم لوگ آتے ہیں۔ اس حوالے سے نظر انداز نہ کیا جائے اس بات کو کہ یہ سارا کچھ پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جانے، سیاسی بحران پیدا کرنے اور پاکستان کے مستقبل کو مخدوش کرنے اور اس کی سلامتی کو مخدوش کرنے کے لیے یہ ابتدائیات اور شروعات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقائق اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ بہرحال اس بارے میں نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان 4 سالوں میں کوئی کرپشن ہوئی ہے، کوئی کک بیکس لیے گئے ہیں، کوئی رشوتیں لی گئی ہیں، کوئی غبن ہوا ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا کیس اس وقت عدالت میں نہ موجود ہے، نہ اس پر کوئی فیصلہ آیا ہے، اور جو باہر کے پیسوں کے حوالے سے مسئلہ تھا وہ بھی نیب میں بھیج دیا گیا ہے، اور نیب بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ کہ جس پر خود مدعی جماعت جو صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے اس کو بھی نیب پر اعتماد نہیں تھا، اور اس نے بھی وہاں پر مقامی طور پر ایک احتساب کمیشن اسی لیے قائم کیا کہ نیب اس کے لیے کافی تصور نہیں ہو رہا تھا۔ آج اسی میں
केस डाले जा रहे हैं और मैं नहीं समझता कि ये तारीख़ इसको इंसाफ के मेयार पर पूरा उतरता हुआ फ़ैसला देखेगी। तो इस हवाले से हम अपनी राय बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ये मुल्क को बहरान की तरफ धकेलने का एक अमल है और इस हवाले से अवाम को एतमाद में रहना चाहिए और ये जो जज्बाती किस्म का उछल कूद है इसकी कोई अहमियत नहीं। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट नहीं है, कैबिनेट नहीं है, अमलन इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, तो क्या आप एक सियासतदान हैं, ये कानूनी हुक्म आपके आइन में मौजूद है कि अगर ऐसी सूरत हो तो कौन पाकिस्तान को चलाएगा? क्योंकि अमलन गवर्नमेंट नहीं है, अगर गवर्नमेंट ना हो, अगर इलेक्शन हो तो आपको पता है इंटरिम गवर्नमेंट होती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट जब इतना बड़ा फैसला दे रही थी और वो एक वज़ीर आज़म को नाअहल करार दे रही थी और उसके इल्म में है कि वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद काबीना खुद ब खुद तहलील हो जाती है, तो फिर उसको सोचना चाहिए था कि अगर ये एक खला आ जाएगा बीच में तो इसको कौन पुर करेगा, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। अभी हमें ये पता नहीं चल रहा कि इस वक्त जो मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है और कोई ज़िम्मेदार नहीं है, इसका ज़िम्मेदार अब किसको ठहराएंगे? ये बताएं कि ये जो आपने जब पकड़ा जाता है तो उससे कुछ रिकवरी की जाती है, यहाँ पे तो रिकवरी का भी पुलिस नहीं है। चोर पकड़ा जाता है, उसका पता होता है कि कहाँ चोरी की है, उसका पता होता है किस मौके पर की है, किस दिन पे की है, वो कुएं का दिन कहाँ है, वो कुएं की जगह कौन सी है। फिर जब पकड़ा जाता है तो उसको रिकवर किया जाता है। क्या पानामा में जो ऑफशोर कंपनियां बाहर बनी हैं, क्या उसका पैसा अब पाकिस्तान में आ जाएगा? क्या फ्लैट्स जो हैं वो पाकिस्तान की मिल्कियत बन जाएंगे? क्या जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं वो पाकिस्तान की कौमी मिल्कियत बन जाएंगे? अगर सब कुछ अपनी जगह पर उसी नवाज शरीफ की मिल्कियत होगा, उसी के ख़ानदान की मिल्कियत होगा, तो फिर एक वज़ीर आज़म ही को हटाना था ना। तो फिर ये सियासी अमल हुआ या फिर ये एक अदालती और जो आपने आलमी साजिश की बात की है, तो क्या अब इसका मतलब ये समझा जाए कि जाने में या अनजाने में अदालत उस आलमी साजिश का हिस्सा बनी है, एक? और दूसरा 62 और 63 जो है वो ये ज़्यादा जो बड़ी पार्टियाँ ये तो निकाल देना चाहती थी आइन से। आपने जब इस्लामी ने मिलकर जब 18वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो आप लोगों ने इसको बचाया। तो 62 और 63 में जब कोई चीज़ छुपाई जाए तो क्या किसी एक वाक़े पे 62 और 63 नहीं लगनी चाहिए? बात यह है कि छुपाना किस चीज़ को कहते हैं। यानी क्या एक शख्स शऊरी तौर पर कहता है कि मेरे पास पैसा है और मैं छुपा रहा हूँ, या ये कि अगर वो शऊरी तौर पर समझता है कि इसके बताने की ज़रूरत नहीं है और अगर कल आप मालूम करने और कहें कि आपका फ़लाँ जगह पर पैसा है, वो कहें हाँ है और मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ इसको, तो मेरे ख्याल में उसको उस तनाजुर में देखना चाहिए। एक है कि आप खामोश रहें, खामोशी झूठ नहीं होती जब तक कि आप झूठ बोलेंगे नहीं जी। और ज़रूरी नहीं है कि हर सच बोला भी जाता हो, बाज़ दफ़ा सच आदमी बोलता नहीं है, लेकिन अगर किसी को उससे पूछा जाए तो फिर बोलता है। इमरान खान की न्याजी सर्विसेज जो है वो भी ऐसे ही था ना कि जब वो पकड़ा गया, जब उसका पता चला तो उसने इतराफ़ का नहीं, पर तो वो भी खत्म हो जाए। मैं इसमें कोई फरीक नहीं हूँ, एक बार बता दूँ जी। मैं सियासतदानों के हवाले से चाहे मेरा सख्त मुखालिफ भी क्यों ना हो, मैं उस पर उछल कूद के हक़ में नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि ऐसे बहरान ये मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। मेरा भी मुखालिफ कल नाअहल हो सकता है, जज्बाती तौर पर मैं भी खुश हो सकता हूँ, लेकिन देखना यह है कि क्या ये माहौल मुल्क के लिए भी मुफीद है या नहीं। मैं वाज़ेह तौर पर बार बार कह चुका हूँ कि मैं एक फ़र्द की जंग नहीं लड़ रहा, मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ। अदालती मार्शल समझते हैं, और दूसरा ये बताएं कि अगला वज़ीर आज़म कौन आ रहा है? ये जो आप कह रहे हैं कि अदालती मार्शल लॉ या जुडिशल कू या ये चीज़ें, ये मैं नहीं कहता, इसको तारीख पे छोड़ दीजिए। सर, क्या इमरान खान अगर यही अदालत क्या इमरान खान को इस तरह की नाअहली की सज़ा दे सकती है? क्या आप समझते हैं कि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? मैं मुझे को पता नहीं, मुझे इसका भी पता नहीं था। इस तमाम अमल के पीछे आपको कोई सियासी बहरान नजर आ रहा है? आप खुद से सवाल कर रहे हैं कि वे क्यों है? एक खला हो गया है, कोई हुकूमत इस वक्त मुल्क में मौजूद नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कल अगर कुछ न कुछ मुल्क में हो जाता है जी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्यों पैदा की गई? मैं कैसे तस्लीम करूं कि मुल्क के आला तरीन आईन और कानून के पासदारान, उनके जहन में ये नुक्ता नहीं होगा कि अगर नाअहल होता है तो मुतबादल सूरत क्या है? साहब ने आपसे नए वज़ीर आज़म को मशवरा किया नहीं, वो उनका अपना डेकोरम है। और पाकिस्तान में उसके मददगार और सहूलतकारों के नाम सामने आएंगे। आप कह रहे हैं ये बैरूनी साजिश है करके सियासी बुरहान पैदा हुआ है,
तो पाकिस्तान में जो उनके सहूलतकार हैं या मददगार हैं उनके नाम सामने आएंगे? आप बाल के खाल उतार रहे हैं। मैंने एक नज़रियाती बात कह दी है, रिकॉर्ड पे आई हुई है, बार बार कह चुका हूँ कि ये मुल्क कहाँ खड़ा है आपका, और आप इन मुल्कों को इन इक़दामात से उस बहरान की तरफ धकेलने का सबब बन रहे हैं या उससे निकालने का सबब बन रहे हैं। ये है बताइएगा कि आपकी मुलाकात हुई नए वज़ीर आज़म के हवाले से कोई नहीं, वो न मैंने बात करनी है, ना उन्होंने हमसे करनी है। उनकी अपनी पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है, उसका अपने इख्तियार के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जो इलेक्शन अभी प्राइम मिनिस्टर का होगा असेंबली के इजलास के बाद, या अपना उम्मीदवार न होकर? हम मैं तो नहीं समझता कि हम 8 या 10-12 अरकान के साथ कोई उम्मीदवार क्या आप नून से इत्तेहाद रह रहे हैं अभी? और वज़ीर आज़म चेंज होते हैं, क्या आप अपना वज़ीर तो नहीं चेंज कर रहे? मेरे ख्याल में जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजू था वो मुकम्मल हो गया है। अब पैदा हो गया है इस अदालती फैसले के बाद, आप क्या समझते हैं कि अब इसका हल क्या है? एक सियासी वर्कर के तौर पर, एक सियासी जमात के सरबराह के तौर पर आप क्या ये बात बल्कि अपनी जगह पर वजह है। अवाम के सामने भी जाना पड़ेगा, पब्लिक को बराह रास्त अपने मौक़िफ़ से आगाह करना पड़ेगा, और ये कि इस सारी सूरत हाल को बड़े ज़िम्मेदाराना अंदाज के साथ हमें कंट्रोल करना होगा। मैंने यही मशवरा दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को कि हमने कोई जमहूरियत के हवाले से बहरान पैदा नहीं करने, जो बहरान पैदा किए गए हैं उससे मुल्क को निकालना है, और जल्द अज जल्द कोशिश की जाए कि फौरी तौर पर एक नई हुकूमत बने, नया वज़ीर आज़म आए और नई काबीना आए, ताकि इस खला से हम फौरी तौर पर जी से अलग तो नहीं हुआ, अलग नहीं। माजी में एक थ्योरी चली थी मैनेज बीबी मैनेज बाबू, आज क्या समझते हैं कि आज के फैसले से वो मुकम्मल हुई है? माइनस मुझे नहीं पता कि माइनस किस चीज़ को कहते हैं। हम तो एक माइनस को जानते हैं कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं। फैसला इंसाफ के मेयार पर पूरा नहीं उतरता। हम समझ रहे थे कि करप्शन पर और पैसा लेने पर नाअहली हुई है, लेकिन यहाँ पर पैसा ना लेने पर नाअहली हुई है। मौलाना फजलुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की अब कोशिश